Hello everyone, Vinita this side. Welcome back to my channel. So I hope you all are fit and fine. So today we are going to start a very famous chapter, my childhood. In that chapter, we do have a little bit autobiography by Mr. Abdul Kalam. So he was none other than APJ Abdul Kalam, who was a very famous scientist as well as political leader also. And the political leader we can say because he was the 11th president of India in 2002. And in his book Wings of Fire, there was a little bit story about him. We can say autobiography. So from that, it would be taken out the chapter My Childhood. So as the name suggests, in my childhood story, APJ Abdul Kalam wants to present his life according to his childhood. So, before you read, we are just having 3 points. We will start with first. Can you think of any scientist who have also been statesmen? क्या आप किसी ऐसे साइंटिस्ट के बारे में जानते हो जो कोई स्टेट्समैन भी है मीन्स उसे पॉलिटिकल लीडर भी है? देन वी विल थॉट अबाउट दैट कि साइंटिस्ट भी है और पॉलिटिकल लीडर भी है. तो मेरे माइंड में तो एक ही नाम आता है. ही वाज नन अदर देन एपीजे अब्दुल कलाम. So APJ Abdul Kalam, whose projects in space, defense, and nuclear technology guided India into the 21st century. APJ Abdul Kalam, जिनकी प्रोजेक्ट स्पेस में, डिफेंस में एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में हमेशा से इंडिया को गाइड किया उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स के थ्रू इन 21st सेंचुरी ऑल्सो became our 11th president in 2002. 2002 में वो हमारे इंडिया के 11th sequentially 11th president जो है वो बने. In his autobiography Wings of Fire, he speaks of his childhood. अपनी ऑटोबायोग्राफी में, ऑटोबायोग्राफी मीन्स अपने बारे में एक्सप्लेन करना अपने खुद के वर्ड्स में, अपने खुद के शब्दों से. सो विंग्स ऑफ फायर में उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है जिसमें से एक छोटा सा पार्ट जो है एज अ स्टोरी यहाँ बनाया गया है. दैट इज माई चाइल्डहुड. I was born into a middle family, we can say Tamil family, in the island town of Rameshwaram. Here we just highlight it Rameshwaram because that is it is the birthplace. It was the birthplace of Mr. APJ Abdul Kalam. So I was born into a middle class Tamil family. मेरा जन्म एक middle class Tamil family में हुआ था. In the island town of Rameshwaram. रामेश्वरम के आइलैंड में. In the erstwhile Madras states. Erstwhile means former, यानी कि पहले का, पुराना, पुराने टाइम में. जो मद्रास स्टेट में एक आइलैंड था रामेश्वरम, जो पहले मद्रास था जिसको अब चेन्नई बोला जाता है. तो जो फॉर्मर मद्रास था वहां पर रामेश्वरम एक आइलैंड टाउन था. वहां के एक तमिल फैमिली में, एक मिडिल क्लास फैमिली में उनका जन्म हुआ था. माय फादर ज्ञानू लाबदेन, the name of his father is Janu Labdin, had neither much formal education nor much wealth. जिनके पास ना तो कोई भी फॉर्मल एजुकेशन, कोई भी शिक्षा नहीं थी और ना ही इतना वेल्थ, पैसा था. डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस, इन कमियों के बावजूद भी he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. जेनरसिटी का स्पिरिट उनके अंदर था, उनकी आत्मा में जेनरसिटी and wisdom also. So he had two qualities, wisdom and generosity. He had an ideal helpmate in my mother. उनके पास एक आदर्श साथी था मेरी मम्मा के रूप में, आशियामा. I do not recall the exact number of people she fed every day. मुझे ये भी याद नहीं है कि एग्जैक्ट कितने लोगों को वो एक दिन में खाना खिलाती थी. But I am quite certain that far more outsiders ate with us
देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर, कि हमारी खुद की फैमिली के साथ बहुत सारे बाहर के लोग भी थे जो हमारे साथ बैठ के खाना खाया करते थे. I was one of many children, a short boy with rather indistinguished look. I was one of many children. मैं बहुत सारे बच्चों में से एक था, एक छोटी सी हाइट का बच्चा लड़का, with rather undistinguished looks, जिनकी looks, जिनकी personality, जिसका जो फीचर थे वो अलग ही तरह के थे. Born to tall and handsome parents, जिसका जन्म एक बहुत ही लंबे और हैंडसम पेरेंट्स के थ्रू हुआ, बट स्टिल आई वॉज वेरी शॉर्ट एंड अनडिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटी. वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, हम अपने पूर्वजों के घर में रहते थे, जो हमारा पूर्वजों के टाइम से हमारा खुद का घर था, हम वहाँ रहते थे. विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी, जो 19th सेंचुरी के मिडिल में बना था. It was a fairly large पक्का house made of limestone and brick. ये एक fairly एक बड़ा सा अच्छा सा पक्का हाउस था, made of limestone and brick, जो limestone और brick से बना हुआ था. अच्छा मजबूत घर था, पक्का हाउस था, ईंटों सीमेंट से यूज करके बनाया गया था. On the Mosque Street in रामेश्वरम, रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में हमारा घर था. My austere father used to avoid, austere means simple personality and with strict rules, जिनके rules बहुत strict थे. Used to avoid all inessential comforts and luxuries. वो क्या करते थे, उन्होंने सारी अनएसेंशियल comforts और luxuries को सबको avoid किया हुआ था. However, all necessities were provided for in terms of food. However, all necessities were provided for. सभी necessities जो हैं प्रोवाइड की गई थी. इन टर्म्स ऑफ फूड, खाने में तो सभी जो है necessities हमारे पास थी. medicines and clothes also, medicines भी थी, दवाइयाँ भी थी और कपड़े भी थे. In fact, I would say mine was a very secure childhood. In fact, I would say, मैं कह सकता हूँ that मेरा जो बचपन था that was very secure, both materially and emotionally. मीन्स जो मटेरियल आई नीड, जिस चीज की मुझे जरूरत थी वो भी हमेशा से मुझे मिली थी, एंड इमोशनली ऑल्सो आई वॉज वेरी, आई फेल्ट वेरी सिक्योर. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939. अब दूसरा विश्व युद्ध जो छिड़ा 1939 में, when I was only 8 years old, जब मैं सिर्फ 8 साल का था. For reasons I have never been able to understand, for reasons कुछ कारणों के लिए, I have never been able to understand, मैं नहीं समझ पाया कारणों को, मैं समझने में असमर्थ था. A sudden demand of tamarind seeds erupted in market, कि अचानक से tamarind seeds की जो डिमांड थी वो मार्केट में कैसे बढ़ गई. I was not able to understand what was the real cause. I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Moscow Street. I used to, मैं क्या करता था, अचानक से वो डिमांड बहुत बढ़ गई तो उसके लिए मैं क्या करता था, उन सीड्स को इकट्ठा करता था एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप. और पास भी जो मस्जिद वाली गली में ही एक प्रोविजन शॉप थी, वहां जाके बेच दिया करता था, बिकॉज इट वॉज अ सडन डिमांड इन द मार्केट. अ डेज कलेक्शन would fetch me the princely sum of 1 anna. Princely sum means iconic amount, अच्छा खासा. एंड 1 आना एन ओल्ड इंडियन कॉइन था, पुरानी करेंसी थी इंडिया की, who's worth about 6 पैसे. So a day collection, he was collected 1 आना at least. My brother-in-law
brother-in-law, Jalalul Abdin, would tell me the stories about the war. वो मुझे स्टोरी सुनाया करता था वार के युद्ध की, which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani. Dinmani is the name of the newspaper. उसने कहा कि उन स्टोरीज को बाद में मैंने, जो युद्ध के टाइम की जो स्टोरीज थी वो तो कुछ मुझे जलालुल आब्दीन जो है वो सुनाया करता था, एंड आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस में भी जो है मैं अटेम्प्ट ट्रेस करता था, मतलब पढ़ता था उनको. आर एरिया बीइंग आइसोलेटेड, हमारा एरिया भी आइसोलेटेड कर दिया गया था, was completely unaffected by the war. क्योंकि वो completely unaffected था ऐसे तो war से, but then also it was being isolated. But soon India was forced to join the Allied forces and something like a state emergency was declared. Allied forces means the army of UK, USA and Russia during the Second World War. It was available here. ज्वाइन करा दिया गया सबको, एंड समथिंग लाइक अ स्टेट इमरजेंसी, कुछ इमरजेंसी सी डिक्लेयर हो गई थी स्टेट में. द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ ट्रेन हर्ट एट रामेश्वरम स्टेशन. सबसे पहली कैजुअलिटी हुई कि जो ट्रेन थी ना रामेश्वरम स्टेशन पर अब रुकती नहीं थी, because our area was completely isolated. So the newspapers now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhanuk Sodhi. अब स्टेशन पे गाड़ी तो रुकती नहीं थी, तो द न्यूज़पेपर को अब बंडल में बांधा जाता था और चलती ट्रेन से रामेश्वर रोड में रामेश्वरम और धनुक सोदी के बीच में फेंक दिया जाता था. That forced my cousin Samsudeen, who distributed newspaper in Rameshwaram. That forced, इस पे दबाव पड़ा मेरे कजन पे जो रामेश्वरम में न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता था, to look for a helping hand to catch the bundle. उसको एक सहायता की जरूरत थी जो उस बंडल को कैच करे. As if naturally I filled the slot. और naturally हुआ क्या, जिसकी उसको जरूरत थी मैंने वो जगह भर दी. It means now APJ Abdul Kalam went for distributing the newspaper and caught the bundles. Samsudeen helped me on my first wage. तो ऐसे मेरे कजन ने मेरी हेल्प की अपनी पहली कमाई के लिए. Half a century later, I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time. आधी सदी के बाद I can still feel the surge of pride. मुझे आज भी गर्व महसूस होता था in earning my own money for the first time, कि मैंने खुद से पहली बार पैसे कमाए. Every child is born with some inherited characteristics. हर एक बच्चे का जन्म कुछ अपनी इनहेरिटेड विशेषताओं के साथ होता है. into a specific socio-economic and emotional environment, जो वह किसी सामाजिक आर्थिक इमोशनल एनवायरनमेंट में होता है. and trained in certain way by figures of authority. So you as usual, I also inherited honesty. मुझे भी विरासत में मिली honesty and self discipline from my father. honesty और self discipline अपने फादर से विरासत में मिला.
And from my mother, I inherited faith in goodness and deep kindness. So I did my three brothers and sisters. मम्मा से मैंने सीखा, अपनी मदर से सीखा अच्छाई में विश्वास रखना एंड डीप काइंडनेस, और गहराई से गहरी काइंडनेस दयालुता दिखाना. सो आई डिड माई थ्री ब्रदर्स एंड सिस्टर, जो हम सब में मैंने की, तीनों भाई और बहनों में. आई हैड थ्री क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड. बचपन में मेरे तीन बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स थे. रामानाथ शास्त्री, Arvinandan, and Shiv Prakash. All these boys were from Orthodox Hindu Brahmin families. All these boys, ये सभी जो लड़के थे, रामानंद शास्त्री, Arvinandam, Shiv Prakashan. So all of these were from Orthodox Hindu Brahmin family. Orthodox family से, Hindu Brahmin family से थे. As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious differences and upbringing. As children, none of us ever felt any difference. बचपन में हमने एक दूसरे के में कभी भी किसी भी तरह का, कोई भी जाति के आधार पर, कोई भी ऊंच नीच के आधार पर हमने कभी एक दूसरे में डिफरेंस नहीं किया. इनफैक्ट रामानंद शास्त्री was the son of पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री. पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था रामानंद शास्त्री, द हाई प्रिस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, जो रामेश्वरम के मंदिर के सबसे बड़े पुजारी थे. बट लेटर ही टुक ओवर द प्रिस्टहुड, उन्होंने पुजारीपन का काम जो था वो ले लिया, छोड़ दिया फ्रॉम हिज फादर. अब उसने ले लिया अपने पापा से काम. Arvindan went into the business of arranging transport for visiting pilgrims. अरविंदन ने बिजनेस शुरू किया ट्रांसपोर्ट अरेंज करने का. अब ट्रांसपोर्ट किस चीज के लिए? फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, तीर्थ यात्रा कराने के लिए. एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउथर्न रेलवे. और जो शिव प्रकाशन था वो एक कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया रेलवे में, साउथर्न रेलवे में. ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता राम कल्याणम ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple of the marriage site. During the annual वार्षिक श्री सीता राम कल्याणम सेरेमनी में हमारी फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स अरेंज किया करती थी उस सेरेमनी के लिए, विद स्पेशल प्लेटफॉर्म, एक स्पेशल प्लेटफॉर्म पे, फॉर कैरिंग आइडल्स, मूर्तियां ले जाने के लिए ऑफ द लॉर्ड भगवान की, फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट. टेम्पल से, मंदिर से जहाँ पे मैरिज थी वहाँ के लिए भेजने के लिए हमारी जो फैमिली थी वो अरेंज बोट्स अरेंज किया करती थी उन मूर्तियों को ले जाने के लिए. सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड राम तीरथ, जो मेरा मैरिज साइट था राम तीरथ में, विच वॉज नियर आवर हाउस, जो हमारे घर के बिल्कुल पास था. इवेंट्स फ्रॉम द रामायण, फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रोफेट, वर द बेड टाइम स्टोरीज. प्रोफेट, रामायण की इवेंट्स फ्रॉम रामायण, रामायण से जुड़े जो इवेंट्स थे. फ्रॉम द लाइफ ऑफ वर द बेड टाइम स्टोरीज माई ब्रदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली. मेरी मम्मा और दादी माँ बच्चों को अक्सर रामायण की स्टोरीज जो है, बेड टाइम स्टोरीज उनको सुनाया करती थी, सोने से पहले जो हम सुनते हैं. वन डे व्हेन आई वाज इन फिफ्थ स्टैंडर्ड एट रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, एक प्राइमरी विद्यालय में जब मैं फिफ्थ क्लास में था, a new teacher came to our class, एक नया अध्यापक हमारी कक्षा में आया. I used to wear a cap which marked me as a Muslim. मैं एक कैप पहना करता था जो मुझे मुस्लिम, मेरे अंदर एक मुस्लिम की पहचान जो है वो कराती थी. And I always sat in the front row next to Ramanand Shastri. मैं फर्स्ट रो में रामानंद शास्त्री से अगली सीट पे बैठता था. Who wore who wore the scared thread, जो पवित्र धागा, क्योंकि वो पुजारी था, पुजारी की फैमिली से था, तो पवित्र धागा जो है वो बांधा होता था उसने, जो ब्राह्मण ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज का होता है. And the new teacher could not stomach a Hindi priest son sitting with the Muslim boy. तो
जो न्यू टीचर थी उसको ये बात हजम नहीं हुई, वो ये बात सहन नहीं कर पाई कि एक पुजारी का बेटा एक मुस्लिम बॉय के साथ बैठा है. So in accordance with our social ranking as the new teacher saw it, I was asked to go and sit on the back bench. अब हमारे सोशल रैंकिंग रखने वाले नए अध्यापक को जैसे उसने देखा तो उसने मुझे उठने के लिए कहा और कहा कि बैक बेंच पे जाके पीछे के बेंच पे जाके बैठ जाओ. आई फेल्ट वेरी सैड एंड सो डिड रामानंद शास्त्री. मैं बहुत उदास हुआ, रामानंद शास्त्री भी. He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. वो मुझे बिल्कुल देखता ही रहा क्योंकि मैं लास्ट रो पे जाके शिफ्ट हो गया था. The image of him weeping when I shifted to the last row last left a lasting impression on me. उसकी जो शक्ल थी वो बिल्कुल रोने जैसी थी. जैसे मैं मुझे लास्ट रो में मैं शिफ्ट हुआ, लेफ्ट लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी. इसका मेरे ऊपर मतलब एक इम्प्रेशन, एक प्रभाव छोड़ गई ये बात मुझ पे. After school, we went home and told our respective parents about the incident. हम जब घर गए तो हमने इसी इंसिडेंट के बारे में अपनी फैमिली को बताया, पेरेंट्स को बताया. So Lakshman Shastri summoned the teacher and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and commune intolerance in the minds of innocent children. लक्ष्मण शास्त्री ने चेतावनी दी टीचर को एंड इन आर प्रेजेंस उस टीचर को कहा गया कि वो ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, कि वो ऐसे सामाजिक असमानता का जहर लोगों बच्चों के मन में, मासूम दिलों में नहीं भर सकते. He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island. वो बिल्कुल सीधे, ब्लंटली बिल्कुल सीधे से अब उनके उसके टीचर को बोला टू इधर अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल, या तो माफी मांगे या फिर स्कूल को क्विट कर दे, आइलैंड को छोड़ दे. नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, ना कि टीचर ने सिर्फ इस बिहेवियर के लिए माफी मांगी, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन, कन्विक्शन होता है अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म द यंग टीचर. और उसको स्ट्रांगली एहसास दिलाया, लक्ष्मण शास्त्री को विश्वास दिलाया कि वो अल्टीमेटली रिफॉर्म्ड, परिवर्तित कर देगी यंग टीचर्स को भी, कि उनके माइंड में भी कभी भी इस तरह का कोई विचार नहीं आएगा. Nextly we do have, on the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of the segregation of different social groups. On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of segregation of different social groups. जो छोटी सी सोसाइटी थी रामेश्वरम की वो डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में डिवाइडेड थी. However, my science teacher Shiv Subramanyam Iyer, through an orthodox Brahmin with a very conservative wife. मेरे जो साइंस टीचर थे सुब्रमण्यम अय्यर, थ्रू एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, वो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से थे, विद अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ. उनकी वाइफ बहुत कंजर्वेटिव थी, मतलब बहुत सोच विचार के काम करने वाली औरत थी. Was something of a rebel. He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. उसने अपना बेस्ट किया इन सोशल बैरियर्स को तोड़ने के लिए, बहुत कोशिश की उसके टीचर ने कि ये वेरियस बैकग्राउंड जो है ना ये एक दूसरे में मिलजुल के रहे. He used to spend hours with me. वो मेरे साथ बहुत समय बिताते थे. एंड वुड से, और मुझे कहा करते थे, कलाम, आई वॉन्ट यू टू डेवलप सो दैट यू आर ऑन पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज. मैं चाहता हूँ कि आप तुम इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचो, हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ बिग सिटीज, बड़े बड़े शहरों के बहुत हाई प्रोफाइल लोगों के बीच में तुम पहुंचो. You develop in such a way. So one day he invited me to his home for a meal. एक दिन, because he usually spend time with me, so he invited me to his home, and his wife was very horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen.
अब उसकी वाइफ तो बहुत घबरा गई इसके उसके इस विचार से कि एक मुस्लिम लड़के को वो अपनी रिचुअली प्योर किचन में खाने के लिए कैसे इनवाइट कर सकता है। सो शी रिफ्यूज्ड टू सर्व मी इन हर किचन, तो उसने मना कर दिया कि वो उसको खाना अपने किचन में नहीं परोसेगी। देन सुब्रमण्यम अय्यर वाज नॉट perturbed, उसने इस बात पे कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। नॉर डिड ही गेट एंग्री विद हिज वाइफ, ना ही वो अपनी वाइफ से गुस्सा हुआ, बट इंस्टेड सर्विंग मी, बल्कि इसकी बजाय सर्व्ड मी विद हिज ओन हैंड्स एंड सेट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील। उसने अपने खुद के हाथों से मुझे खाना परोसा और वो बिल्कुल मेरे साथ बैठ गया खाना परोसने के लिए, खाना खाने के लिए। His wife watched us from behind the kitchen door. उसकी वाइफ किचन के पीछे के किचन के डोर के पीछे से हमें झांक रही थी। I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water or cleaned the face after the meal. मैं हैरान था, मैं सोच रहा था कि क्या वो हमें मुझे ऑब्जर्व कर रही है कि क्या डिफरेंस है मेरे अंदर, कि मैं खाना चावल खा रहा था, पानी पी रहा था और मैंने फ्लोर को क्लीन किया खाना खाने के बाद। So when I was leaving his house, Shiv Subramanyam Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. तो दोबारा से शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने मुझे अगले हफ्ते खाने पे फिर से इनवाइट किया। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट, सेइंग, मेरी हेजिटेशन को देखते हुए उन्होंने मुझसे कहा कि अपसेट निराश होने की जरूरत नहीं है। वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड, कि एक बार अगर आपने चेंज करने का कुछ डिसीजन लिया है ना, ये प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगे। When I visited his house the next week, अब जब अगले हफ्ते मैं उसके घर विजिट मील के लिए गया, तो शिव सुब्रमण्यम्स अय्यर्स वाइफ took me inside her kitchen and served me food with his own hands, with her own hands. उसकी वाइफ ने मुझे ना कि अपने किचन में खाने के लिए बुलाया, बल्कि मुझे खुद अपने हाथों से खाना सर्व भी किया। Then the Second World War was over. अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया एंड इंडियाज फ्रीडम वाज इमिनेंट, और इंडिया की जो फ्रीडम थी, जो आज़ादी थी, वो बिल्कुल इमिनेंट थी। हिस्टोरिकल इवेंट था इंडिया के लिए। इंडिया विल बिल्ड देयर ऑन इंडिया, इंडियंस ने अपना, भारतीय ने अपना खुद का भारत बनाया। डिक्लेयर्ड गांधी जी ने डिक्लेयर किया कि नाउ इंडियंस विल बिल्ड देयर ऑन इंडिया, कि अब भारतीय अपना खुद का भारत बनाएंगे। द होल कंट्री वाज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, पूरे शहर में एक आशावादी लहर जो है वो भर गई। I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in Ramanathapuram. मैंने अपने पापा से पूछा, परमिशन ली कि वो रामेश्वरम छोड़ के मैं रामानाथपुरम के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में पढ़ाई के लिए जा सकता हूँ। Then he told me as if thinking aloud. उन्होंने मुझसे कहा कि as I as if thinking aloud, Abdul, I know you have to go away to grow. अगर मैं तुम्हारे लिए सोचूं तो अब्दुल, मुझे पता है कि तुम ग्रोथ के लिए यहाँ से जाना चाहते हो। Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? Does the seagull not fly? क्या सीगल नहीं उड़ सकती सूरज के पास तक, alone and without a nest, नेस्ट के बिना और अकेले, कि वो नहीं उड़ सकती? He quoted Khalil Gibran to my hesitant mother. He quoted, उन्होंने quote किया खलील जिब्रन के द्वारा बोली गई इन लाइंस को। To my hesitant mother, मेरी जिसको आशंका थी मेरी मदर को, उनको, your children are not your children. Your children are not your children. आपके बच्चे सिर्फ आपके नहीं है। They are the sons and the daughters of life's longing for itself. They are the son and daughters. ये बेटे और बेटियां हैं लाइफ लॉन्गिंग, अपनी खुद की इच्छा से लाइफ जीने के लिए भी तो है ना ये, इनकी खुद की भी तो इच्छाएं होंगी ना। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, दे कम थ्रू यू, ये तुमसे आए हैं लेकिन नॉट फ्रॉम यू।
यू मे गिव देम योर लव, तुम्हें इनको प्यार देने का अधिकार तो है, बट नॉट योर थॉट्स, लेकिन आप अपने विचार इन पे थोप नहीं सकते हो, फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, उनके लिए इनके पास उनके खुद के विचार हैं, तो इनके विचारों को इनको उड़ान दो, इनको उड़ने दो अपने खुद की इच्छाओं को पूरा करने के लिए. So here the author APJ Abdul Kalam, who's taken this my childhood autobiography from an extract from Wings of Fire. I hope you will understand this. So thank you. Have a nice day.